बट नेपोलियन के टाइम पे कैसा पीरियड था, हाउ डिड ही रूल्ड, वो सब हम 6 पार्ट में देखेंगे. तो 6th one is the revolution and everyday life. Can politics change the clothes people wear, the language they speak, or the book they read? The years following 1789 in France saw many such changes in the life of men, women, and children. The revolutionary government took it up themselves to pass laws that would translate the idea of liberty and equality into everyday practice. But अभी क्या हो रहा था, हम लोग ने ऊपर देखा that though it was किंग का पावर नहीं था, बट स्टिल किंग तो नहीं था, तो ऐसा नहीं था कि कोई एक ही पर्सन उनके ऊपर रूल कर रहा है. बट सिंस अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि फ्रेंच में ओवरऑल ऐसे रिपब्लिक टाइप गवर्नमेंट नहीं थी, किसी ना किसी का तो रूल हो रहा ही था, बी इट जैकोबियन क्लब या बी इट नेपोलियन, कोई ना कोई तो उनके ऊपर रूल कर ही रहा था. तो दे आर ट्राइंग टू से दैट ओनली कि 1789 ये जो पूरा ईयर था, it brought many changes. So what are those changes, what are those revolutionary movement, वो हम लोग देखेंगे. One important law that came into effect soon after the storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. तो हम लोग ने देखा स्टार्टिंग में कि कैसे लोगों को गुस्सा आया था एंड दे डिस्ट्रॉयड बस्टाइल फोर्ट. बरोबर मिसकम्युनिकेशन हो गया था कि लुइस 16 ने सोल्जर्स को भेजा था, तो उनको लगा हम लोग को हम लोग के लिए भेजा है, तो दे स्टार्टेड डिस्ट्रक्टिंग बस्टाइल फोर्ट. एंड उस टाइम पे क्या हुआ, एक ये अच्छा रूल पास हुआ था कि जो सेंसरशिप होता है ना, उसको एंड कर दिया था ना. व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरशिप? अगर एक मैं एग्जांपल दूं तो अपन मूवीज देखते, तो मूवीज में बताता है ना कि सेंसर ने इसको नॉर्मल मूवी पास किया है या कोई टाइप में डिस्क्राइब करते, तो जो सेंसर होता है, बोर्ड ऑफ सेंसर हम लोग बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सेंसरशिप. मतलब क्या, किसी एक का राइट होता है, उनको उनको उनका पहले लॉ, उनका पहले ये आना चाहिए ऑर्डर, फिर ही वो आगे पास होता है वैसे. तो ये जो सेंसरशिप था उसको बंद कर दिया था 1789 में. In the old regime, all written materials and cultural activities like book, newspapers, plays could be published or performed only after they have been approved by the censors of king. तो मैंने बोला ओल्ड रेजिम बस्टाइल फोर्ट की बात कर रहे थे, तो तभी किसका पावर था, किंग का पावर था. तो वो लोग वही बता रहे थे कि ओल्ड रेजिम में कैसा है कि ये सारे, अगर कोई न्यू बुक आया या कोई न्यूज़पेपर आया, तो वो ऐसे ही पब्लिश नहीं कर सकते, जब तक किंग ने अप्रूवल दिया नहीं तब तक इट wasn't allowed to publish. But now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be natural right. But अभी नया रूल आ गया था, that was Declaration of Right and Man and Citizen. उसमें क्या था, they have freedom of speech and expression, कि एक freedom of speech है और freedom of expression है, वो उनको right दे दिया था, that now if they want any newspaper or any book to be published, they can publish it by themselves, and they doesn't, they don't मैम need, they don't need to ask permission of मैम any. Yeah. मैम मुझे ना बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप वीडियोस भेजेंगे क्या इसका मैम? Yeah, I every time send it once the lecture is over. Still, you keep try, staying in the session. Yes, And if yes, it ma'am. is not, My Wi-Fi is automatically going off. That was it is big problem. no, it's fine. Since we are recording the session, the link would be sent it to you in the group itself. So no problem. ठीक है. So what Declaration of Right of Man and Citizen आया जिसने permission दिया that now you have freedom of speech and expression. So if you want anything to be done, you can do it by yourself and you don't need any permission from the king. So now on newspaper, pamphlets, books, and printed pictures flooded the towns of France from where they travel rapidly into the countryside. तो जैसे लोगों को परमिशन मिल गई, अगर उनको कोई न्यूज़ बताना है या कुछ भी बताना है, they used to print it and then
लोगों तक वो पहुंचता था, एंड नॉट ओनली टिल द पीपल ऑफ द कंट्री बट अदर कंट्रीज तक भी ये बात पहुंचने लगी. दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेसेस इन फ्रांस. ठीक है, तो क्या आता था न्यूज़पेपर में, जो जो चीजें घट रही है, जो जो डिस्कशंस हो रहा है, क्या क्या इवेंट्स हेल्ड हो रहे हैं, वो सारे के बारे में वो न्यूज़पेपर में आता था. Freedom of the press also meant that opposing view of events could be expressed. Each side sought to convince the other of its position through the medium of prints. Okay, तो freedom of press में क्या आता था कि अगर पार्थ का व्यू है या पार्थ का कोई ओपिनियन है, एंड अगर मुझे वो अच्छा नहीं लगा सपोज, तो मैं उसको अपोज कर सकती हूँ. तो वो भी मुझे परमिशन था, वो भी मुझे फ्रीडम था. तो अगर आपको किसी के व्यूज पसंद नहीं आ रहे, तो यू कैन इवन oppose them. So everyone had the right. Plays, songs, and festive processions attracted large number of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at the length in text which only a handful of educated people could read. Okay, तो फिर ये लोग क्या करते थे? They used to organize different kinds of plays, festive processions, जिसके वजह से people used to come together, and उससे related they used to write information. तो people who were educated, उनको ये सब चीजें अच्छी लगने लगी. they like this idea of liberty, कि ये जो एक liberty का idea है कि उनको जो freedom मिला है वो हमारे countries को भी मिलना चाहिए. बाकी सब countries में still there was this king का power ना, कि जो king है वही rule कर रहा था. तो इनकी वजह से they like this idea of liberty and justice, and that is why they also thought कि हमारे country में भी ये सब होना चाहिए. अभी we will see about नेपोलियन, कि हम लोग ने देखा नेपोलियन ने रूल ले लिया, तो नेपोलियन ने क्या किया वो अभी हम लोग देखेंगे. In 1804 नेपोलियन बोनापार्ट crowned himself as emperor of France. ठीक है, उसने क्या किया? खुद को emperor of France कर दिया. ओके, तो पूरा पावर अब उसके हाथ में था. कौन? नेपोलियन बोनापार्ट. He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms wherever he placed member of his family. Okay, तो ये क्या करने लगे? खुद तो फ्रांस के किंग बन गए, बट एट द सेम टाइम वो क्या करते थे? दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में जाते थे, एंड वहां पे ही यूज्ड टू डिस्पोज हिज ओन डायनेस्टी. वहां पे जो किंग होता था उसको हरा देते थे, एंड वो खुद का रूल वहां पे भी करता था, एंड देन ही यूज्ड टू क्रिएट हिज ओन किंगडम, एंड देन वहां के किंग को हटा के कोई अपने मेंबर, फैमिली मेंबर को वहां पे बिठा देता था. समझा क्या करता था नेपोलियन बोनापार्ट? यस मैम. डायनेस्टी थी, उनको ये कर दिया, हरा दिया, एंड खुद का किंगडम बनाया. अभी किंगडम बनाया तो यू नीड अ किंग ओवर देयर, तो अपने ही कोई फैमिली मेंबर को वहां पे प्लेस कर दिया एज अ किंग. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. Okay, he introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. तो अभी उनको है ना सब लोग मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप बोलने लगे. ओके, व्हाई? लेट अस सी. ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, के जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ना उनको वो प्रोटेक्ट करने लग गए. क्यों उनको प्रोटेक्ट करने लग गए? सो दैट वहां पे प्रोडक्शन होगा, एंड फिर प्रोडक्शन होगा तो उनको पैसा मिलेगा. तभी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसका होता था? फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले, जो नोबल्स थे और क्लर्जीज थे. तो वो लोग तो खुश हो गए कि वाह वाह हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये प्रोटेक्ट कर रहा है. तो उनको जो नेपोलियन थे उनको फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से बहुत सारा सपोर्ट मिलता था. फिर उन्होंने क्या किया? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स लाया. मतलब क्या? वेट्स मतलब क्या होता है पता है? वजन. जिससे अभी व्हेन यू गो टू बाय वेजिटेबल्स, दे कीप वेट, एंड फिर उसके बदले वो आपको वेजिटेबल देते. देखा है ना ये? पार्थ. यस मैम. हेलो. हाँ, देखा है आपने वेट्स?
if you go to a vendor, what he does when you buy vegetables, वो weight रख देते हैं ना, वजन काटा रखते हैं, देखा है ना? यस मैम, देखा है। हाँ, are you there ना in the meet? यस मैम, मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ कुछ सुनाई नहीं ठीक दे है, रहा मैम। ठीक, ओके ओके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनको है ना लोग मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप बोलने लगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत नए नए पॉलिसीज लाए। जैसे फर्स्ट पॉलिसी उन्होंने लाया, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था ना, उनको वो लोग प्रोटेक्ट करने लगे। अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसका होता है? फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वालों का। तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से नेपोलियन को बहुत सपोर्ट मिलता था, क्योंकि वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्ट करने का लॉ उन्होंने पास किया। सेकेंड वॉज यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स। वेट्स मतलब वजन काटा। तो बहुत बार क्या होता था, अभी समझो अगर आप कोई रिमोट पार्ट में गए, गांव में गए, तो वहां पे वेट्स नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक पत्थर रख देते हैं और बोलते हैं हाँ ये पत्थर के हिसाब से आपको वजन करके भाजी दे देते। तभी वो पत्थर कैसे, हमको क्या पता बराबर 1 किलो का रहेगा या ½ kg का होगा। सो दिस इज लाइक यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक सिमिलैरिटी नहीं है। तो उन्होंने सब जगह ये वेट्स इंट्रोड्यूस किए कि जिनको जो भी मिलना चाहिए वो इक्वल क्वालिटी में मिलना चाहिए। And third one is he provided the decimal system. अभी decimal system क्या होता था, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि पहले क्या होता था पता है? कि अभी समझो 10.50 रुपीज, लाइक 10 रुपीज 50 पैसा का कोई चीज है, तो लोगों को ऐसे डेसिमल पैसा इतना कुछ समझता नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे, 10 रुपए में दे देते थे। अभी एक चीज मैंने 10 रुपए में दी तो ठीक है, इट वुड बी लाइक ओके, इट्स फाइन। बट ऐसी अगर 5 चीजें आई या 10 चीजें आई, एंड दसों में लाइक ऑल दोस 10 थिंग्स आई वुड सेल ऑन 10 रुपीज, आई वुड सेल इट ऑन 10 रुपीज, तो मेरा लॉस होगा ना। पहले का 50 पैसा, पहले का 50 पैसा, 50 50 ऐसे करके 5 रुपीज का मेरा लॉस हो गया। आई यू गेटिंग इट? तो ये जो डेसिमल सिस्टम होता था ना, वो उन्होंने सबके लिए इक्वल कर दिया। ये सबका डेसिमल सिस्टम सेम होगा, तो उसके वजह से कोई प्रॉब्लम होता नहीं था। Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom to the people. तो जब उन्होंने ऐसे नए लॉज लाए, ऐसे रूल्स लाए, तो लोगों को भी वो अच्छे लगने लगे। उनको लगा कि ये तो एक लिबरेटर है जो हमारे लिए फ्रीडम ला सकता है। एंड ही वाज, मतलब क्या, ही वाज लव्ड बाय पीपल। But soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. He was finally defeated at Waterloo in 1850. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. जैसे ही लोगों को लगा कि वाह ये हमको फ्रीडम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी टाइम क्या हुआ कि जो नेपोलियन के आर्मीज थे ना, वो क्या करते थे, वो दूसरी जगह जाके लोगों को परेशान करते थे, एंड दे यूज्ड टू शो देयर फोर्स। तो इसीलिए फिर लोगों को वो अच्छा नहीं लगने लगा, एंड फाइनली नेपोलियन को कभी डिफीट किया था, 1850 में वाटरलू में ही वाज डिफीटेड। समझा यहाँ तक? ये but he brought many revolutionary ideas. Okay, उन्होंने ये जो लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज लाए, जैसे उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट किया, डेसिमल सिस्टम लाया, वेट्स लाया। तो ये सारा जो उनका आइडियाज था, दैट वाज लाइक्ड बाय पीपल इवन आफ्टर ही हैड लेफ्ट। Okay, the ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of French Revolution. They spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal system were abolished. ठीक है, तो ideas of liberties and democratic rights कहाँ से आए? कि हमको liberty मिलना चाहिए, हमको freedom मिलना चाहिए, and हमको democratic rights मिलने चाहिए। ये idea लोगों तक कहाँ से आए? लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये आइडिया मिला। एंड मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज उस टाइम पे
फ्रेंच से फ्रांस से बहुत ये होती थी, इंस्पायर होती थी, बिकॉज दे वर स्टिल रूल्ड बाय किंग. So at that time they used to look at French Revolution and they loved that how liberty and democratic rights was something which we got from French Revolution. These spreads from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal system was abolished. Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Ram Mohan Roy, Ram Mohan matlab Raja Ram Mohan Roy, are the two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary force. अभी आपने कुछ नया देखा पूरे चैप्टर में, पहले दो इंडियन का नाम लिया गया है, वन इज टिप्पू सुल्तान एंड वन इज राजा राम मोहन रॉय. ये Yes, दो भी ma'am. ऐसे थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए थे. उसकी जो आइडियाज थी लिबर्टी की और डेमोक्रेटिक राइट्स, जो हम अभी जो देखते हैं लेजिस्लेटिव जुडिशियरी, ये सब डेमोक्रेटिक राइट्स पहले फ्रांस में आया फिर हमारे पास आया. तो ये उन्हीं से इंस्पायर्ड था. फिर जो लिबर्टी इनको मिली कि लिबर्टी ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सारी आइडियाज भी हमने फ्रांस से इंस्पिरेशन में ली है. समझा चैप्टर? Yeah. Now we will see the question answers. ठीक है. Describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest in France. ठीक है कि कौन कौन से ऐसे circumstances थे जिससे revolutionary protest हुआ फ्रांस में, क्यों लोग प्रोटेस्ट करने पे आए. तो वेरी फर्स्ट वॉज, अगर हम देखें कौन सा हो सकता है, बोलो आप, आपको कौन सा लगता है? See, the very first was privileges right from birth. हम लोग ने देखा ना, जो ये है स्टेट्स है, उनको कैसा था, उनको पहले से ही प्रिविलेजेस थे. उनको किसका प्रिविलेजेस था? दैट दे डिडंट हैड टू पे टैक्सेस, दे हैड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ. उनको काम नहीं करना पड़ता था. तो ये जो प्रिविलेजेस फ्रॉम बर्थ था, ये एक चीज लोगों को पसंद नहीं आता था कि अगर वो नोबल फैमिली से है या क्लर्जी फैमिली से है तो उनको पहले से ही प्रिविलेजेस है, उनको कोई काम करना नहीं पड़ता था. तो ये एक चीज थी जिसके वजह से लोगों ने रिवॉल्यूशन किया. फिर सेकंड एक चीज थी, व्हेन हम लोग ने देखा कि ब्रिटेन और अमेरिका का फाइट चल रहा था और उसमें फ्रांस ने उनको हेल्प किया. तो उसमें हेल्प किया तो बहुत सारे टैक्स नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे ये आ गए थे, इंटरेस्ट आ गया था पे करने के लिए. दे हैड टू पे अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. तो जो ब्रिटेन और अमेरिका का वॉर था, ब्रिटेन वॉर एंड अमेरिका वॉर, उसमें जो फ्रांस ने हेल्प किया तो उसके वजह से भी उनके बहुत सारे ये हो गए थे, लॉसेस हो गए थे. एंड वो लॉस को ये करने के लिए, टू फुलफिल दैट लॉस, लुइस 16 ने क्या किया, नॉर्मल चीजों का प्राइस बढ़ा दिया. तो प्राइस बढ़ा दिया तो वो लोगों को मिल नहीं रहा था. एंड देन लोगों को गुस्सा आया कि भाई आप खुद ब्रिटेन को ये करो, ब्रिटेन और अमेरिका के वॉर में आप मदद करो, एंड फिर उनकी पनिशमेंट हमको मिले क्योंकि आप नॉर्मल फूड जो होता है उसका प्राइस बढ़ा देते हो. तो ये एक सेकंड चीज थी जिसके वजह से वापस रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट हुआ. फिर थर्ड वाज कंसंट्रेशन ऑफ पावर अमंग द प्रिविलेजेस. ये भी पहले जैसा ही है. कंसंट्रेशन ऑफ पावर अमंग प्रिविलेजेस मतलब क्या, कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट खुद एंजॉय कर रहा था सब पावर, एंड देन थर्ड स्टेट हैड टू स्ट्रगल. तो ये आप लिख सकते हो.
किसमें? अगेन दैट कॉज्ड द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के जो फर्स्ट और सेकंड क्लास थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, they enjoyed all privileges no matter what, they had right to vote, everything. So again that was one of the reason जिसके वजह से revolutionary movement आया. Then next point you can write कि subsistence crisis हो गया, right? हम लोग ने देखा subsistence crisis हो गया, जो normal चीज है substances SUBSI. या बच्चा ये सिर्फ मैं शॉर्ट में दे रही हूँ, आपको इसको ब्रीफ में लिखना है. जैसे मैं तो ये सिर्फ पॉइंट्स दे रही हूँ, बट ये पॉइंट्स को आपको एलैबोरेट करना है. जैसे मैंने यहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस लिख लिया, तो यू नीड टू एक्सप्लेन दैट कैसे सब क्वेश्चन करे. पॉइंट 3 में हम लोग ने देखा, सेकेंड पॉइंट में लिख सकते 2 या 3. क्या क्या 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हैं ना मैक्सिमम. नो यू नीड टू राइट इट इन ब्रीफ. अरे आपको टॉपिक समझा है ना, यस फिर आप मैम. हाँ, क्यों डर रहे ब्रीफ हो? में लिखेंगे, ब्रीफ में लिखेंगे. मतलब मैम इसमें पॉइंट्स आपने दिया है ना उसमें. हाँ उसमें यू नीड टू राइट इट इन शॉर्ट. अभी जैसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया, तो वो आप सेकंड पॉइंट में बता सकते हो कि ब्रिटेन एंड अमेरिकन का वॉर हुआ, तो पैसे कम थे कंट्री में, सिंस मनी वाज लेस, व्हाट लुईस 16 डिड, ही इम्पोज टैक्सेस ऑन बेसिक एमिनिटीज. बेसिक एमिनिटीज पे टैक्स बढ़ा दिया, तो पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया. सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मीनिंग क्या होता है वो लिख दो, दैट व्हेन बेसिक एमिनिटीज इज इन डेंजर, दैट इज कॉल्ड एज सब्सिस्टेंस क्राइसिस. समझा? तो पॉइंट को समझ समझ के जब आप लिखोगे ना, तो तब आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड देन लास्ट पॉइंट यू कैन राइट ग्रोइंग मिडिल क्लास, दैट नाउ पीपल, हम लोग ने देखा कि जो थर्ड स्टेट में थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हम लोग एजुकेशन लेंगे, हमारे फ्यूचर जनरेट को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, and we will let them know. So now they got to know what is wrong, and this entire process is something which is completely wrong. फिर ग्रोइंग मिडिल क्लास साथ में आए, उन्होंने खुद का ग्रुप बनाया विच वाज जैकॉबियन क्लब. ये सब चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो. क्लियर? yes. Yeah. Second चीज, which group of French society benefited from the revolution? Which groups, यहाँ पे आपको मिल जाएगा points. Which groups of French society benefited from the revolution? विच, तो कौन सा ग्रुप बेनिफिटेड हुआ रिवॉल्यूशन? जब रिवॉल्यूशन आया तो हम लोग ने देखा अभी लास्ट में कौन सा ग्रुप बेनिफिटेड हुआ? थर्ड ग्रुप बेनिफिटेड हुआ, बरोबर ना? उनको सारे राइट्स मिल रहे थे. सो द थर्ड ग्रुप दे वर बेनिफिटेड. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रेलिंक्विश पावर? तो रेलिंक्विश पावर करने के लिए किसको फोर्स किया गया था? तो हम लोग ने देखा दैट क्लर्जीज एंड नोबल्स, वो लोग फोर्स थे कि उनको अपनी पावर सरेंड करनी थी. तो क्लर्जीज एंड नोबल्स दे वर फोर्स. तो ऐसा वन लाइन में नहीं लिखना, आपको थोड़ा उसको एक्सपांड करके लिखना है. लास्ट में क्या लिखा है? विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ रिवॉल्यूशन? तो रिवॉल्यूशन के वजह से कौन डिसअपॉइंटेड था? जो moderates थे, they were disappointed. Why? Because they wanted to create their own constitutional monarchy. So they were disappointed. समझा? तो ऐसे you need to write it in brief. Next, describe the legacy of the French Revolution for the people of the world during 19th and 20th century. तो हम लोग ने देखा कौन कौन सी legacy आई. अभी यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा legacy during the फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो कौन सी मेन legacy थी? एक लिबर्टी की थी और एक थी डेमोक्रेटिक राइट की. समझा? समझ रहा है? So which was the legacy? The first one was idea of democratic rights. के जो democratic rights का idea है उससे वो एक था. And which one is the next one? तो हम लोग ने देखा the next one is liberty with equality and fraternity. Are you getting it? Yeah. Next.
एंड व्हाट, इसको भी आपको चाहिए था एक्सपांड में, यू कैन राइट दैट अदर यूरोपियन कंट्रीज टू वर इंस्पायर्ड बाय दिस एंड इंडिया वाज वन के जिसने दे गॉट इंस्पायर्ड। एंड फिर जो 2 इंडियन हिस्टोरियंस का नाम लिखा आप वो बता सकते हो उसमें। नेक्स्ट वन, draw up a list of democratic rights we enjoy today whose origin could be traced by French Revolution। तो यही बताया है कि ऐसी कौन सी राइट्स है जिससे हम इंस्पायर्ड हुए हैं बट उनका रूट फ्रेंच रेवोल्यूशन से है, कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है बट अभी हम वो एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग ने देखा बहुत सारे राइट्स है, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, बराबर ना, ये सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से थॉट्स आए बट उनसे हम लाइक वी हैव इट राइट नाउ एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। तो ये सारे आ जाएंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट, सॉरी फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये सारा आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गया। इज इट गेटिंग, आपको ऑडिबल है कि आपका नेटवर्क इशू ही है अभी तक? यस मैम। आ रहा है आवाज? फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, तो ये सारी ओके ओके समझा मुझे। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, तो ये सारी चीजें you can write. Next, would you agree with the views that the message of universal right was beset with contradictions? Explain. ठीक है, मतलब क्या बताया, जो यूनिवर्सल राइट है मतलब सबको राइट इक्वली मिला जाएगा, देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है? एंड एक्सप्लेन। तो या ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बराबर यूनिवर्सल राइट्स दिए गए थे क्या? What do you think? Were universal rights given? सब लोग वहां पे इक्वली ट्रीट किए गए थे क्या? नो, यूनिवर्सल राइट्स वर नॉट गिवन। और एग्जांपल हम बता सकते हैं, तो वेरी बिग एग्जांपल ऑफ वुमेन, दे वर नॉट गिवन इक्वल राइट, दे वर नॉट, yeah, they were not given equal right to vote, they were struggling, they were not even allowed to vote। तो ये सब आप बता सकते हो। फिर वुमेन हो गए, इवन मेन वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स, जो पैसिव सिटीजन में मेन थे 25 इयर्स के नीचे, दे वर नॉट गिवन राइट टू वोट। तो आप ये सब लिख सकते हो। तो ये सब क्या है, यूनिवर्सल बोलते हैं कि यूनिवर्सल लॉ है बट ट्रीट वैसा नहीं किया गया था। So yeah, it contradicts, it wasn't treated well, and yeah, ये statement contradict करता है, बराबर। And last is, how would you explain the rise of Napoleon? कि नेपोलियन का rise आप कैसे explain करोगे? तो वापस हम लोग को वही लिखना है कि नेपोलियन आया कैसे, पहले वो बताने का। तो नेपोलियन कैसे आया, जैकोबियन का फॉल हुआ तो क्या हुआ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड। जो डायरेक्टरी ऑफ 5 मेंबर्स वाला था, कौन सा था वो? एग्जीक्यूटिव। हाँ बच्चा, एग्जीक्यूटिव था बट उसका नाम क्या था? डायरेक्टरी ना, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। या क्यों कंफ्यूज हो जाते हो आप, हमेशा भूल जाते हो। डायरेक्टरी आया जो मेंबर ऑफ 5 का था बट वो कभी भी टिक नहीं पाया। व्हाई? बिकॉज दे ऑलवेज हैड क्लैशेस। किसके साथ उनका क्लैशेस होता था? लेजिस्लेटिव के साथ उनका क्लैशेस होता था, एंड वो लोग ज्यादा देर लेजिस्लेटिव, तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए, एंड सिंस इट क्रिएटेड अ वैक्यूम, और वो वैक्यूम का ये किसने किया, एडवांटेज किसने लिया? तो अब आएगा ना, नेपोलियन ने एडवांटेज लिया। या तो ऐसे बताने का, नेपोलियन के बारे में अगर पूछा है तो नेपोलियन कैसे आया वो पूरा बताने का, कि पहले जैकोबियन का फॉल हुआ, जैकोबियन का फॉल हुआ तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था विच वाज डायरेक्टरी, एंड देन क्लैशेस हुआ तो फिर वैक्यूम क्रिएट हुआ, एंड वैक्यूम क्रिएट हुआ तो फिर जाके नेपोलियन आया। फिर उसका राइज कैसे हुआ तो वापस बताने का। राइज में हम लोग ने देखा उन्होंने क्या किया, ही वाज नोन एज अ
मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, उन्होंने नए नए लॉज लाए। तो कैसे लॉज लाए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी प्रोटेक्टेड। फिर उन्होंने जो वेट्स था उसका यूनिफॉर्म सिस्टम लाया कि जो वजन वाला कांटा रहेगा वो सब जगह सेम होना चाहिए। फिर उन्होंने डेसिमल सिस्टम लाया, जो पॉइंट वाला रहता है वो उन्होंने लाया। तो दैट इज ऑल द लॉज विच ही क्रिएटेड, पीपल लाइक देम, एंड दैट इज हाउ ही केम इनटू पिक्चर, दैट इज हाउ ही राइज। समझा? Yes, ma'am. Okay, so that is how we come towards the end of our chapter. The सब पूरा फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने देख लिया है, कैसे क्या हुआ पूरा। Now anytime I can take test anytime, so I want all the ऐसा नहीं होगा कि ये खाली 6 के 6 क्वेश्चंस मैं पूछूंगी टेक्सचुअल, it can be from the textbook itself. So I want you to know the entire chapter every term. When I ask you what is Yes, ma'am. directory, yeah, when I ask you what is directory, you should know that, ma'am, it was a legislative which was being created after the fall of Jacobian. It include 5 members, but it didn't work well because they had clashes. तो ये सब आपको आना चाहिए, because when I'm teaching I have given my entire energy, I have made sure कि उसी time पे आपको समझे. So I want response at the same time. आपने देखा ना अभी मैं कैसे पार्थ के साथ ये कर रही थी, because I don't like people who lie